beta, we have discussed about oxidation number yesterday and how we can calculate oxidation number of any species by using the rules which are followed while assigning an oxidation number to a particular element. Now suppose if we have certain examples in which you will see that it comes out to be fractional. तो वो fractional oxidation number कैसे आ सकते हैं अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग के टाइम पे मतलब जो शेयरिंग हुई है आप पूरा इलेक्ट्रॉन आप एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को प्रोवाइड करवा दो जो शेयरिंग के टाइम पे यूज हुआ है ना दैट एंटायर इलेक्ट्रॉन पेयर यू कैन से दैट इट बिलोंग्स टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते इलेक्ट्रॉन्स एज यू नो देन हाउ फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन नंबर कम्स आउट तो दैट विल डिस्कस अबाउट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल आपके पास write first example Fe3O4. Fe3O4 is, you know what is that, which oxide? Ferrous ferric oxide of iron or you can say magnetic oxide of iron इसको हम कहते हैं. So if you calculate this oxidation number of iron using formula method, what it would be? Suppose it is X, you can write 3X plus 4 minus 2 3x is equal to minus 8 और x is equal to 8 by 3. ठीक है तो how it can be fractional अगर हम इसको चेक करते हैं स्ट्रक्चरली मेथड से तो you must remember this thing that Fe3O4 ये फॉर्मूला मेथड से हो गया स्ट्रक्चर मेथड से अगर हमें चेक करना है FeO and Fe2O3 iron exists in these two different oxidation numbers plus 2 and plus 3 state में वो exist करता है. So this is iron oxide FeO in plus 2 state and this is oxide of iron in plus 3 state Fe2O3 and this is ferrous ferric oxide is actually equimolar mixture of these two. इन दोनों का equimolar mixture है या उसको stoichiometric mixture actually कहते हैं. Same amount में ये present है FeO and Fe2O3 and this mixture is collectively written as Fe3O4. So Fe3O4 is not a pure compound, rather it contains two different compounds FeO and Fe3O4 dissolved or mixed in same proportion which is called a stoichiometric mixture and अगर आप इसको collectively लिखते हो तो Fe3O4 हो गया ना but अब इसमें तीनों iron atoms सेम ऑक्सीडेशन नंबर में नहीं है एक आयरन एटम +2 स्टेट में 2 आयरन एटम्स आर इन +3 स्टेट तो इफ वी नीड टू फाइंड द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन बिकॉज़ 3 आयरन एटम्स आर देयर एंड इफ ऑल दीस एटम्स हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स देन वी टेक एवरेज ऑफ दैट तो जो एवरेज आएगा दैट विल बी इन फ्रैक्शन तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम एक ऑक्सीडेशन FeO वाला 2 में है बाकी एलिमेंट्स 3 में और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 3 so that will be 8 by 3 clear why how it comes out to be fractional because when a compound contains more than one in number मतलब एक particular element एक से ज़्यादा है उसमें present so it is not necessary that all of those particular atoms of that same element will be in same oxidation state. They may be in different oxidation states and when you take average क्योंकि आपको एक सिंगल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग चेक करने के बाद आपको ओवरऑल उसमें जब बतानी होती है फॉर्मूला में तो आप एवरेज निकाल के बताते हो एवरेज कम्स आउट टू बी फ्रैक्शनल क्लियर अदरवाइज फ्रैक्शनल पॉसिबल नहीं होती बिकॉज ये ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन पूरा ही ट्रांसफर होगा इधर से उधर आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता तो इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल ओनली द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कम्स आउट टू बी फ्रैक्शनल कल एक निकाली थी ना हमने पेरोक्साइड में उसमें भी ऐसे ही एक ऑक्सीडेशन स्टेट एक की माइनस होती है एक की जीरो होती है तो इट कम्स आउट टू बी -1 टोटल तो उसको हम हाफ करके मतलब -1/2 तो -हाफ हो जाता है नेक्स्ट राइट वन मोर एग्जांपल यू रिटन दैट यहाँ पर आपने ये लिख लो एक लाइन Fe3O4 is a stoichiometric mixture of FeO and Fe2O3 in which Fe3O4 is a stoichiometric mixture of FeO and Fe2O3
oxidation number of iron in FeO. Oxidation number of iron in FeO is +2 and in Fe2O3 it is +3. Oxidation number of iron is +2 and +3 respectively, FeO and Fe2O3. यहाँ एक एटम है, यहाँ दो है, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर will be 2 + 3 + 3. These two atoms are in +3 state and this one atom is in +2 state. तो एवरेज आपने जो निकाला 8/3 and that is equal to this oxidation. Clear? हाँ जी बेटा, हाँ जितने टोटल एटम्स है सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स, दैट विल बी एवरेज. नेक्स्ट एग्जांपल, वन मोर, Pb3O4. Pb3O4 is again comes out to be 8/3 आएगा ये भी, ठीक है, by formula method. Next इसमें लिखिए Pb. Next write Pb3O4 is a mixture of lead. कौन सी कॉमन वैलेंसीज में कंपाउंड बनाता है? लेड इज अ मेंबर ऑफ 14th ग्रुप. 14th ग्रुप में जो वैलेंसीज है कॉमन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 p में है और 2 s में है. तो इनर्ट पेयर इफेक्ट एक फिनोमिना है p ब्लॉक के अंदर कि जो s लार्जर जो हायर एलिमेंट्स है ना p ब्लॉक के, जो लोअर है ग्रुप में, उनमें s इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थोड़े इनर्ट हो जाते हैं बिकॉज s इलेक्ट्रॉन्स आर मोर पेनिट्रेटिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. उनकी स्फेरिकल स्ट्रक्चर की वजह से वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं. तो फॉर हायर एलिमेंट्स दे आर क्वाइट प्रोटेक्टेड एंड दे डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. तो p ब्लॉक एलिमेंट्स में जो लोअर वाले एलिमेंट्स हैं दे शो अ वैलेंसी लेसर देन +2. तो उनके कम कर दो वो s इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते. अदरवाइज इन सम कंपाउंड्स दे आल्सो शो दैट हायर वैलेंसी. तो लेड के केस में 2 वैलेंसीज हैं, +4 एंड +2. ये +2 वाली वैलेंसीज के लिए ज्यादा स्टेबल है. लेड का जो PbO है ऑक्साइड, दैट इज मोर स्टेबल देन PbO2. PbO2 इज लेड टेट्रा ऑक्साइड एंड PbO इज लेड डाइऑक्साइड. ठीक है, तो दो ऑक्साइड बनाता है लेड, PbO एंड PbO. अब इसमें क्या है कि ये इसके 2 मोल्स प्रेजेंट है यहाँ पे इस मिक्सचर के अंदर, 2 मोल्स ऑफ PbO एंड इसका एक ही मोल. तो ये टोटल आप ऐड करोगे PbO, अगेन 1 PbO एंड 1 इज PbO2. कितना हो गया आपके पास? Pb3O4. क्लियर? तो Pb3O4 is a mixture of Pb3O4 is a mixture of 2 moles of PbO, that is lead dioxide, 2 moles of PbO and 1 mole of PbO2, in which lead is in +2 and +4 state respectively. Lead is present in +2 and +4 oxidation state respectively. PbO में +2 state में है, PbO2 में +4 में. तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ जी बेटा, +2 स्टेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 2. तो 2 टाइम्स विल राइट 2 + 2 और एक PbO2 में जो है वो 4 है ऑक्सीडेशन स्टेट, divided by 3, it comes out to be 8/3. नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कार्बन सब ऑक्साइड C3O2. जो NCERT बुक में है ओनली दोज एग्जांपल्स विल डिस्कस.
C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड, पहले फॉर्मूला से निकालिए. Who will find? What is the oxidation number of carbon by formula method? 4/3. अगेन ये फ्रैक्शनल आ रहा है, तो फ्रैक्शनल जब भी आएगा आपको शो करना है स्ट्रक्चरली. अब इसकी जो स्ट्रक्चर है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, जैसे CO2 होता है ना. CO2 इज नॉर्मल कार्बन ऑक्साइड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज द स्ट्रक्चर. कार्बन सब ऑक्साइड में तीनों कार्बन पहले आपस में डबल बॉन्डेड है, उसके साथ फिर टर्मिनल कार्बन पे एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है. तो स्ट्रक्चरल मेथड में एक चीज याद रखो, इफ an element is bonded on both sides with similar atoms. तो कार्बन के दोनों तरफ कार्बन है, तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट सिमेट्रिकली अरेंज है. तो इस कार्बन पे कोई एक्स्ट्रा मतलब चार्ज नहीं है, जितने उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स है वही उसके पास है. तो दिस कार्बन विल एक्वायर अ जीरो ऑक्सीडेशन नंबर. आपको कभी भी उस एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देना, कोई भी चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि चार्ज कहाँ से आता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से. अब जब आप सेम एटम दोनों तरफ सिमिलर एटम्स अटैच्ड होगा, देन नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विल बी देयर, तो नो चार्ज विल बी ऑक्यूपाइड बाय दिस एटम. इस पे जीरो हो गया. अब ये कार्बन को चेक करो, इसके इस तरफ ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और टू कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए आपको, डबल बॉन्ड के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शो करना है. तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विल बी टुवर्ड्स ऑक्सीजन साइड. तो इसका चार्ज -2 हो गया, इसका भी -2. अब इसका -2 है, तो बैलेंस करने के लिए कार्बन का कितना आएगा? +2. दिस इज +2 एंड दिस इज. तो स्ट्रक्चरल मेथड में आपको फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. आप स्ट्रक्चर बनाओ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे जो एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है पर कोवेलेंट बॉन्ड उसको एक चार्ज माइनस दे दो. जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है उसके अकॉर्डिंग उतना चार्ज होगा. ट्रिपल बॉन्ड्स है तो -3, डबल बॉन्ड है -2, सिंगल बॉन्ड है -1 फॉर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके उतना ही पॉजिटिव है. और इफ द एलिमेंट इज बॉन्डेड विद द सेम टाइप ऑफ एटम, देन नो चार्ज विल बी और नो ऑक्सीडेशन नंबर विल बी गिवन 0 आएगा. तो अब आपको एवरेज निकालना है. 3 कार्बन एटम्स है यहाँ पे, तीनों का एवरेज फाइंड करोगे, इट विल कम आउट विल बी 2 + 0 + 2 divided by 4/3. ठीक है. So in this way it is fractional because one carbon is in zero oxidation state and 2 carbon atoms are in +2 state. Next is tetrathioneate ion, SO6. टेट्राथायोनेट आयन या टेट्राथायोनिक एसिड भी है, H2SO4 एसिड के नेम पे भी है. जहाँ पर भी S4O6 आपने पढ़ना है, टेट्राथायोनेट आयन के लिए होगा. तो लेट अस कंसीडर दिस. By formula method as sulfur का oxidation number 4x, 1 के लिए x, तो 4. ये चीज तो आपको फाइंड करनी आती है. 4 एटम्स हैं, एक के लिए x असाइन कर दो, 4x plus 6 ऑक्सीजन एटम. ईच ऑक्सीजन विल बी इन -2 स्टेट, इक्वल्स टू यहाँ पे चार्ज है -2. ठीक है. तो x will be equal to 12. चार्ज जो आया आपको हर एक सल्फर पे 5/2 है. अब आपको स्ट्रक्चरली प्रूव करना है. थोड़ा बहुत इन बेटा जो एग्जांपल्स एनसीईआरटी में ना, आपको उनके स्ट्रक्चर्स माइंड में रखनी पड़ेंगी, अदरवाइज ऐसे पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए फाइंड करना. तो इसकी जो स्ट्रक्चर है, इट इज चारों सल्फर जो है वो डबल बॉन्ड से अरेंज्ड है. ठीक है. और उसके
ऑक्सीजन की अदरवाइज वैलेंसी 2 होती है, तो 2 ऑक्सीजन एक सल्फर के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है एंड 1 ऑक्सीजन इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज एंड सल्फर कैन नॉट मेक मोर देन 6 बॉन्ड्स। तो उसके अकॉर्डिंग अपने स्ट्रक्चर थोड़ी माइंड में रखनी है, या तो जनरली 2 बॉन्ड बनाता है, 4 भी बना सकता है, बट मैक्सिमम जो है कैपेबिलिटी सल्फर की बॉन्ड फॉर्मेशन की वो 6 है, तो 6 बॉन्ड्स हियर और इन सल्फर के 2 है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, अब ये सल्फर दोनों साइड सल्फर है, इसके भी दोनों साइड सल्फर है, तो these 2 sulfur atoms will have 0 oxidation number। अब इस सल्फर के साथ more electronegative elements attached है, for this oxygen it will be -2, इसके लिए भी -2। ये ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड बना रहा है, एक तो उसका अपना लोन पेयर की वजह से चार्ज है, वो आपको कंसीडर नहीं करना, आपको इसका ये -1 कंसीडर करना है। Here it is -2 -2। तो इस सल्फर पे कितना हो गया ऑक्सीजन की वजह से 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शिफ्टिंग होगी ऑक्सीजन के पास, सल्फर हो गया +1, ये +5, ये 0, ये 0, दिस इज आल्सो +5। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इज 5 + 0 + 0 + 0 + 5। टोटल नंबर ऑफ सल्फर एटम्स आर 4, तो 10/4 और 5/2। ये तो थोड़ा बहुत आपको माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना, क्योंकि for tribromo octoxide by formula method you will find that oxidation number is 16/3। again it comes out to be fractional, तो fractional oxidation number को आपने structurally prove करना है, तो you need to draw its structure and it exists in this form। Pr atoms, सेंट्रल एटम बेटा सेंटर में ही बनाने आपने, और ऑक्सीजन आपको टर्मिनल अरेंज करना, एंड ये जो एलिमेंट्स है 17 ग्रुप के, दे कैन मेक मैक्सिमम 7 बॉन्ड्स। मैंने आपको कल ही बताया था 17 ग्रुप का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। एंड 16 ग्रुप में 6 बॉन्ड मैक्सिमम बनेंगे, कोवेलेंट 15 पे 5 मैक्सिमम बनते हैं, 14 पे 4। तो ये थोड़ा सा ग्रुप नंबर से आपको याद रखते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय दीस एलिमेंट्स। और ऑक्सीजन जनरली अगर ऐसे एलिमेंट्स के साथ अटैच्ड है, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के साथ, तो डबल बॉन्ड के साथ हो सकता है ऑक्सीजन, इसीलिए ऑक्सीजन के कंपाउंड ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स और मेटालिक, बिकॉज ऑक्सीजन कैन मेक डबल बॉन्ड्स। फ्लोरीन डबल बॉन्ड नहीं बना पाता, फ्लोरीन के उतने कंपाउंड्स नहीं है, क्योंकि आप अगर 7 फ्लोरीन या 1 फ्लोरीन एटम किसी एक सेंट्रल एटम के अराउंड अरेंज करोगे तो बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, मॉलिक्यूल उतना स्टेबल नहीं होता। IF7 बनता है बट उतना स्टेबल नहीं है। बट ये डबल बॉन्ड्स के साथ जब ऑक्सीजन आता है तो वैलेंसी बहुत हाई है, ब्रोमीन +7 स्टेट में हो जाएगा। अभी यहाँ पर नहीं है +7 में, बिकॉज एक यहाँ पर ये ब्रोमीन बॉन्ड है, तो दिस वन विल बी सॉरी इसके साथ दो ऑक्सीजन और है, ठीक है। Who will tell now the oxidation numbers? जस्ट ऑक्सीजन की वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी आएगी, इन बॉन्ड्स का शिफ्टिंग नहीं होगा। -2 सारे ऑक्सीजन -2 में है, +6 एंड दिस इज हो गया ये टोटल 16। Now this is to for these kind of inorganic molecules। अब कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो है हमारे ऑर्गेनिक, उनमें हम कैसे फाइंड करेंगे डिफरेंट, बिकॉज यू नो दैट कार्बन इज प्रेजेंट इन अ चेन, तो चेन में डिफरेंट कार्बन एटम्स है, उनके अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं। तो फार्मूला मेथड से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो एक्चुअल में एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल वी चेक हियर, दो एग्जांपल आपको बुक में है तो दोनों में डिस्कस करेंगे।
example. इथेनॉल मॉलिक्यूल, पहले फॉर्मूला से कैलकुलेट करो ऑक्सीडेशन नंबर, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो C2H6O, ठीक है। इथेनॉल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन विच वी नीड टू कैलकुलेट 2x + 6 what it would be, ठीक है, -2 आएगा, x comes out to be -2 है। अब आपको ये स्ट्रक्चरली प्रूव करना है कि -2 कैसे आया, क्योंकि दो कार्बन एटम है तो दोनों का एवरेज ये -2 है, तो वी नीड टू चेक इट। स्ट्रक्चर्स थोड़ी बहुत तो बनाने आती है आपको, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब फंक्शनल ग्रुप्स किए ही नहीं है ना, अदरवाइज कोई बात नहीं, ऑर्गेनिक का चैप्टर है इसी टर्म में आपको, और आपको ये एक्चुअली दो एग्जांपल्स है इसमें, इतना तो आप कर लो, बाकी स्ट्रक्चर्स जो है देन वी विल डिस्कस दैट चैप्टर। OH फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल, जो नॉर्मली अल्कोहल्स कॉमन बेवरेजेस की फॉर्म में यूज होते हैं, डेली लाइफ में ड्रिंकिंग बेवरेजेस, वो यही वाला अल्कोहल है, इसका नेम है इथेनॉल, ठीक है। तो इथेनॉल इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ कॉमनली यूज्ड अल्कोहल। इवन जो आपको हॉस्पिटल्स में आफ्टर इंजेक्शन एक वो स्पिरिट लगाते हैं ना, तो वो स्पिरिट भी इसी का फॉर्म है, प्योर फॉर्म ऑफ इथेनॉल इज यूज्ड एज स्पिरिट। बार अल्कोहल इस फॉर्म में ये पेट्रोल में भी मिक्स किया जाता है, तो सो मेनी यूजेस आर देयर ऑफ दिस अल्कोहल। अदरवाइज आपने इतने नेम्स तो किए हैं ना कार्बन के, 1 के लिए हम नीट वर्ड यूज करते हैं, ये भी नहीं किया, देन 2 फॉर नीट, देन 3 फॉर प्रॉप, तो ये 2 के लिए 8 प्लस all is used for alcohol, ठीक है। अल्कोहल के नेम्स में से ये पार्ट को एज अ सफिक्स यूज करना है, तो फॉर 1 कार्बन इज मिथेनॉल, सेकंड कार्बन 2 कार्बन इथेनॉल, 3 के लिए प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इन दिस वे द नेम्स आर देयर, तो दिस इज इथेनॉल, ठीक है। अब आपको यहाँ पर हाइड्रोजन ड्रॉ करने हैं इसके साथ, और एक हाइड्रोजन जो इथेन का है, इथेन इज C2H6 ना, इथेन का एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस करना है OH ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप से, तो दिस इज इथेनॉल। अब इसमें आपको ये चीज याद रखनी है कि बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड, उनको कंसीडर करना है, अगर सेम कार्बन के सेम एटम्स के साथ है तब तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होगा, बट व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड, हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर्ड टू कार्बन, तो इसकी वजह से हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगी, तो दिस इज -1, सॉरी +1, दिस इज +1, दिस इज +1। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ये तो मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप का वो सफिक्स बताया था जो ऐड करते हैं, जैसे एन, इन, आइन सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड में, तो फंक्शनल ग्रुप के लिए भी कुछ सफिक्स यूज होते हैं, वो अभी हम ऑर्गेनिक में नॉमेनक्लेचर कर देंगे, अदरवाइज इतना बच्चे पहले 10 से करके आते थे तो उनके लिए इजी होता था। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप था एक 10 में, एल्डिहाइड है, कीटोन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेटा ये देखो, इस कार्बन के इस तरफ ऑक्सीजन है, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वजह से इसका -1, इस सिर्फ इस बॉन्ड के लिए लिख रही हूँ, अदरवाइज ये हम कंसीडर, हमने सिर्फ कार्बन के लिए फाइंड करना कि ईच कार्बन एटम उसके साथ किस तरह के बॉन्ड्स हैं, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये +1, दिस इज +1, दिस इज -1, कितना आ जाएगा इस कार्बन पे चार्ज। वैसे इसके लिए ना 2 मेथड है, किसी ग्रुप में कार्बन के साथ यहाँ ऑक्सीजन है तो इस पूरे ग्रुप के लिए इसको -1 किया, बट बोथ वेज एक्चुअल में एटम्स की इंडिविजुअल अलग आ सकती हैं, बट एवरेज सेम आएगा आप किसी भी मेथड से करो। तो मैं जो मेथड यूज कर रही हूँ, आई एम नॉट showing the shifting of this carbon, but otherwise थोड़ा बहुत shifting इस तरफ रहेगा, because this carbon is again bonded with oxygen. So both methods will be followed in some institutes, कुछ different हो सकता है, वो लोग इस bond की shifting इस तरफ करके यहाँ पे भी -1 कर देंगे, तो ये कार्बन भी उतना +1 आ जाए। बट मैं अभी क्योंकि हम बाकी इनऑर्गेनिक में हमने देखा कि अगर सेम एटम्स अटैच्ड है तो हम इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग को कंसीडर नहीं कर रहे, तो आई एम नॉट कंसीडरिंग दिस शिफ्ट, सिर्फ इसकी वजह से इस कार्बन पे आ गया +3 and this carbon +1, ठीक है, तो it will +1 नहीं -1, टोटल चार्ज आपका this x
एवरेज यहाँ माइनस एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर विल बी -3 प्लस -1 डिवाइडेड बाय माइनस, ठीक है। तो एवरेज ऑक्सीडेशन सेम आएगा। अगर आप उस साथ वाले ऑक्सीजन को कंसीडर करके भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करते हो, सपोज आपने इसको इस बॉन्ड के लिए भी यहाँ -1 दिया, यहाँ +1 दिया, तो ये -2 हो जाएगा, ये भी -2, तब भी एवरेज -2 है। बट इजी रहेगा अगर आप कार्बन कार्बन में इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग ना करो, और बोथ ऑफ द मेथड्स आर कॉमनली यूज्ड, क्योंकि एवरेज कम्स आउट टू बी सेम बाय बोथ। अदरवाइज इंडक्टिव इफेक्ट रहता है, थोड़ा बहुत शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स। वन मोर एग्जांपल ऑफ दैट इज आई थिंक कार्बोक्सिलिक एसिड का है वो, एसिटिक एसिड, इथेन, इथेनॉइक एसिड। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसिटिक एसिड कॉमनली यूज्ड एज विनेगर, ठीक है। इट हैज मीथेन, जो आपका मॉलिक्यूलर CH4 गैस, मीथेन का एक हाइड्रोजन अगर हम COOH ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो वी गेट दिस फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स यूज होता है ओइक एसिड। इस COH पार्ट का जो नेम है ओइक एसिड, और ये है आपका, ठीक है, मीथेन का डेरिवेटिव है। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो नेम बन जाएगा मेथनोइक एसिड, ई डिलीट करना होगा, ठीक है। दिस सॉरी 2 कार्बन एटम्स हैं, नॉमेनक्लेचर विल प्रैक्टिस इनऑर्गेनिक, यहाँ पर अभी टेंशन मत लो कि नाम नहीं आ रहा इसका, ठीक है। एसिटिक एसिड और इथेनॉइक एसिड CH3COOH। अब आपको इसका कार्बन का अगर इसमें फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप पहले इसको इस तरह से लिख लो C2H4O2। नाउ फाइंड फॉर्मूला मेथड से जो एवरेज निकालना है दैट विल बी 2x + 4 x comes out to be +4 - 4 0 हो गया, 0 गया। अब स्ट्रक्चरली प्रूव करना है हमने, हाउ इट कम्स आउट टू बी 0। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच्ड होता है, दूसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से OH ग्रुप के साथ। Because this is a kind of acids in which hydrogen is linked with O, यही वाला बॉन्ड ब्रेक होता है जब एसिड अपना हाइड्रोजन रिलीज करता है, and these hydrogen of hydrocarbon part will not be released as hydrogen ion, सिर्फ इतना पार्ट डिसोशिएट होगा, ठीक है। तो here 3 hydrogen atoms + 1, 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के लिए -2, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन -1। डोंट कंसीडर दैट, सिर्फ हमें कार्बन को कंसीडर करना है। कार्बन के 4 बॉन्ड टेट्रावैलेंट है, किस किस एटम्स के साथ वो बॉन्ड बना रहा है, ओनली वी गो फॉर दैट। तो ये कार्बन -2 -1, दिस विल बी हैविंग +3 एंड +1 एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर -3 + 3/2 0 आ गया। अब अगर आपको कुछ बुक्स में ऐसे मिले, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ये बॉन्ड के भी इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो दिस कार्बन विल बी इन +2 फॉर्म एंड दिस विल बी इन -2 फॉर्म, ठीक है। तो उस फॉर्मेट में फिर यहाँ पर आपको आएगा 0 ही। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कार्बन कार्बन को आप स्किप कर सकते हो, हम उसके मार्क्स नहीं काटते। हमें सिर्फ ये देखना है कि बच्चे को इतनी नॉलेज है कि ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को नेगेटिव चार्ज देगा, ठीक है। तो इस केस में अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, बिकॉज इट हैज 2 ऑक्सीजन अटैच्ड है। तो ये भी अल्टीमेटली अपनी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी इधर से पूरी है। तो ये जितने एग्जांपल्स थे मैंने कंसीडर कर लिए। टुमारो विल